السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں حکیم کے مر جانے کے بعد جنگل میں حلیمہ اورحان سے کہتی ہے وہ بہن کے آنے والے قافلے پر حملہ کریں گے بھائی، تو اورحان کہتا ہے ہم جانتے ہیں، ہم تدبیر اختیار کریں گے، ماں سے کچھ مت کہنا۔ تلاش کے دوران نیلوفر کہتی ہے زہر کے شفا کے بارے میں یہاں کچھ نہیں ہے، تو اورحان کہتا ہے میرے بابا کی شفا اس کبوتر کی منزل پر ہے، فاطمہ کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہمیں ان لوگوں تک پہنچائیں گے جنہوں نے بابا کے ساتھ یہ کیا ہے۔ ہم بابا کی شفا صرف اسی طرح ڈھونڈ سکتے ہیں، جو کھیل وہ کھیل رہے ہیں وہ بڑا ہے، وہ قبیلے میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے بھائی کائی قبیلے میں تو پھوٹ نہیں ہوتی، تو اورحان کہتا ہے میری بولی بہن، جہاں انسان ہوگا وہاں پھوٹ ہوگی، خاص کر کے اگر بات اقتدار کی ہو تو۔ اقتدار اس کو نہیں ملتا جو جدوجہد کرے، بلکہ اسے ملتا ہے جو اس کا حقدار ہو۔ میرے سپاہیوں کے پاس جاؤ اور انہیں تیار رہنے کو کہو، ہم بھی خیمے کی طرف لوٹتے ہیں، میں علاؤالدین کو سب کچھ بتاؤں گا، یا تو میں اس گندے کھیل کو ختم کروں گا یا پھر یہ کھیل ہماری وحدت کو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ تینوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں خادمہ خیمے سے باہر آتی ہے اور علاؤالدین، ملون خاتون اور شاہنشاہ سے کہتی ہے سردار بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کے ملون خاتون اور علاؤالدین بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ باہر برہان پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا ہوتا ہے، اس لمحے جیر کتائی سرداران اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اترتے ساتھ ہی پرجوش انداز میں برہان کے گلے لگ جاتا ہے۔ توران اور تیمور بوگا بھی آگے بڑھتے ہوئے برہان سے گلے ملتے ہیں۔ جیر کتائی دوسری بار برہان سے گلے ملتے ہوئے کہتا ہے میں ایک بار پھر دیکھ لوں، زخم تو ہیں لیکن وہ تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ برہان اس سے کہتا ہے آپ کے بہادروں کی وجہ سے میرے زخم بڑھ جائیں گے، تم نے فلاویوس کا کھیل برباد کر دیا۔ تو جیر کتائی کہتا ہے ہم اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کریں گے۔ تیمور بوگا کہتا ہے لیکن برہان بھی آپ کا دل ٹوٹا ہوا لگ رہا ہے، آپ کچھ بجھے ہیں۔ برہان کچھ کہنے ہی لگتا ہے کہ ڈھول بجانے والا دربان ان کے پاس سے گزرتا ہے۔ یہ دیکھ کر اوچی پوچھتا ہے بتاؤ برہان بھی، کیا یہ ڈھول خیر کے بج رہے ہیں یا شر کے لیے؟ برہان کچھ کہنے ہی لگتا ہے کہ دربان کی آواز آتی ہے اے لوگو، عثمان صاحب کے بہادر بیٹے نائب علاؤالدین صاحب نے شام کے وقت جرگہ منعقد کیا ہے، یہ مت کہنا کہ تم نے سنا نہیں۔ یہ سن کے جیر کتائی اور برہان پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ دربان کی آواز کرا خلیل کے کانوں تک بھی جا پہنچتی ہے۔ ادھر جیر کتائی برہان سے پوچھتا ہے بھائی یہ کیسا جرگہ ہے؟ تو برہان کہتا ہے سرداران، عثمان سردار بہت بیمار ہیں، یعنی نیند میں ان کی بڑبڑاہٹ کے علاوہ زندہ ہونے کی اور کوئی علامت نہیں ہے۔ یہ سن کے سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اندر خیمے میں دیدار گونجا کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ گونجا پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے او میرے سردار بابا، میرے اللہ تو ہمارے بابا کو ہمیں بخش دے۔ اس لمحے دربان کی آواز آتی ہے اے لوگو۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونجا باہر کی جانب دوڑتی ہے مگر دیدار اسے روک لیتی ہے اور دربان کی مزید آواز انہیں سنائی دیتی ہے عثمان صاحب کے بہادر بیٹے نائب علاؤالدین صاحب نے شام کے وقت جرگہ منعقد کیا ہے۔ یہ سن کے دیدار خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے علاؤالدین صاحب جرگہ منعقد کر رہے ہیں، اسی کی آواز ہے۔ شاہنشاہ اور وہ صدران جو ان پر بھروسہ کرتے ہیں وہ علاؤالدین صاحب کی حمایت کریں گے، اگر وہ مضبوط رہے تو اب سلطنت علاؤالدین کے سپرد ہے، لیکن اصل کام اب بھی تمہیں کرنا ہے۔ صرف صدران ہی نہیں بلکہ خاندان کی حمایت بھی علاؤالدین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ گونجا کہتی ہے ماں کا ارادہ تو بہت پہلے ہی واضح ہو چکا ہے، وہ چاہتی ہے کہ اورحان ہو، فاطمہ کو دیکھے تو وہ اپنی ماں کی بات نہیں ٹالتی، حلیمہ بھی ویسے ہی ہے۔ دیدار کہتی ہے فاطمہ کی یزید کے ساتھ شادی اسی لیے اہم ہے، تمہیں ہماری مدد کرنی چاہیے اور تمہیں حلیمہ کا بھی کوئی حل سوچنا چاہیے، تم مستقبل کی ریاست کی ماں بنو گی، بیٹی وہ آگ تمہاری آنکھوں میں ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونجا سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ ادھر ایک طرف سے ترک سردار اور دوسری طرف سے فلاویوس تیمورتاش کے ٹھکانے پہنچتے ہیں۔ فلاویوس کو دیکھ کر تیمورتاش آگے بڑھتے ہوئے اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ فلاویوس اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور ترک جھنڈوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کئی قبیلوں کے جھنڈے ایک قبیلے میں جمع ہیں، میں آپ کے دشمن کی جگہ پر نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تیمورتاش کہتا ہے جو ہوا بوتا ہے وہ طوفان کاٹتا ہے، کائی کے خلاف ہمارے حملے کی یہ مرکزی قرارگاہ ہوگی اور میں چاہتا تھا کہ تم ان آدمیوں کو دیکھ لو جن کے ساتھ تم جنگ کرو گی۔ یہ سن کے فلاویوس منگول سپاہیوں کو مشق کرتا ہوا دیکھتا ہے اور پھر تیمورتاش کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے، مگر تیمورتاش کا کمانڈر فلاویوس کی آمد سے کچھ زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتا۔ ادھر رات کے وقت اورحان نیلوفر اور حلیمہ کے ساتھ قبیلے پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد نیلوفر سے کہتا ہے میں علاؤالدین سے بات کر کے روانہ ہو جاؤں گا، بچے تمہارے سپرد ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے آپ کا راستہ آسان ہو، میری دعائیں ہمیشہ
हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बुरहान आगे बढ़ता है तो कारा खलील उसे कहता है, मेरे हुजूर उस्मान सरदार की हालत वही है, लेकिन कबीला बदल चुका है। अलाउद्दीन साहब ने सरदारों को जमा किया है, उन्होंने खेमे में जिरगा मुनक्किद किया है। यह सुन के बुरहान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, जिरगा? कैसा जिरगा? तो कारा खलील कहता है, जंग का जिरगा। बुरहान गुस्से में अलाउद्दीन कहता हुआ आगे बढ़ जाता है। अंदर जिरगे में तमाम सरदारान जमा होते हैं। मलून खातून कान लगा के उनकी आवाजें सुन रही होती हैं। शहनशाह कहता है, बुरहान साहब की बुरसा में शिकस्त के बाद दुश्मन का उस्मान साहब की बीमारी का फायदा उठाकर हमला करना आम मसला है, इसलिए बुरसा को फौरन फतह करने की जरूरत है। बुरहान खेमे में दाखिल होते हुए कहता है, शाहीन शाह साहब अपनी बातों पर ध्यान दें। फिर अलाउद्दीन से कहता है, जब मेरे बाबा अंदर बीमार लेटे हैं तो क्या इस कबीले का इससे ज्यादा अहम कोई और मसला है? मेरे बाबा की शिफा ढूंढने के बजाय तुम यहाँ जिरगा मुनक्किद करके फतह की बातें कर रहे हो, क्या ये तुम्हें जेब देता है? अलाउद्दीन कहता है, उस्मान साहब की सेहत के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब किया जा रहा है बुरहान साहब। तो बुरहान कहता है, तुम्हें ये उनके पास खड़े होकर करना है अलाउद्दीन, यहाँ जिरगा मुनक्किद करके नहीं। अलाउद्दीन कहता है, मेरे बाबा और रियासत दोनों मेरे सुपुर्द हैं, तुम बेफिक्र रहो। शहनशाह कहता है, उस्मान साहब की सेहत यकीनन हम सब के लिए बहुत अहम है, लेकिन हमारे कबीले का मुस्तकबिल भी उतना ही अहम है, और वो मुस्तकबिल बुरसा की फतह पर मुनसिर है। औची कहता है, सरदार ठीक कह रहे हैं, हमने काफी इंतजार कर लिया है। तो बुरहान गुस्से से कहता है, तुम बुरसा पर हमला करने की रट लगाए रखते हो, क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि यह वक्त तलवार उठाने का नहीं बल्कि दुश्मन के इत्तेहाद के खिलाफ तदबीर करने का वक्त है? शहनशाह कहता है, दर हकीकत क्या तुम अपनी बातों को सुन रहे हो? बुरहान भी, तुम्हारा मतलब है कि तुम काफू से सुलह करना चाहती हो? बुरहान कहता है, समझ लो कि मैंने कह दिया शाहीन शाह साहब। ये कहते साथ ही बुरहान घूर घूर के शाहीन शाह को देखता है और शाहीन शाह बाकी सरदारों को। उधर जंगल में रात के वक्त तैमूरताज फ्लावियोस और कमांडर के साथ मंसूबा तरतीब दे रहा है और नक्शे पे इशारा करते हुए कहता है, करामान ओगलो इस तरफ से आएंगे, गरमियान जुनूब से करासी मगरिब से आएंगे और फ्लावियोस शमाल से तुम, और चारों तरफ से घेरे हुए काई इसी बिल में फंस के रह जाएंगे और वो उस तकदीर के सामने झुक जाएंगे जो मैं मुकर्रर करूंगा। फ्लावियोस कहता है, वो तकदीर जो उनका खात्मा कर देगी। तो तैमूरताज कहता है, नहीं फ्लावियोस, हम वो सुनहरी मुर्गी क्यों ज़िबाह करेंगे? मैं उनसे महसूल जमा करने से कभी दस्तबरदार नहीं हूँगा। मैं काइयों के सर पर एक भरोसेमंद सरदार को छोड़कर सहवास वापस जाऊंगा। फ्लावियोस पूछता है, अगर तुम उन सबको खत्म नहीं करना चाहते तो मुझसे क्या तवक्को रखते हो? तैमूरताज कहता है, जब वक्त आएगा तो तुम उनकी करारगाहों पर इस तरह हमले करोगी कि तुम उनके बाजू और पर ऐसे काटोगे, वो दोबारा कभी भी मेरे खिलाफ खड़े होने की जुर्रत नहीं करेंगे। इधर जिरगी में शहनशाह कहता है, सुलह करना काइयों को उनके बाबरकत फतह के रास्ते से रोकना है। अलाउद्दीन कहता है, बुरसा और अलखानी हमें मुख्तलिफ तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने हमसे जंग छेड़ दी है। क्या सुलह करना और सर झुकाना काइयों को जेब देता है बुरहान साहब? बुरहान कहता है, क्या तुम उन सब से लड़कर हमारे लोगों को मरवाओगे? हमारी आधी फौज बुरसा में है, कौन कैसे इस जंग में शामिल हो पाएगा? शहनशाह कहता है, हम जब बुरसा लेंगे तो वो फौज जहां हम चाहेंगे वहां पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। बुरहान कहता है, बजंतीनी, अलखानी तमाम सल्तनतें बुरसा के लिए मुत्तहिद हो चुकी हैं। अगर इस इत्तेहाद को तोड़ने का रास्ता सुलह से गुजरता है तो हमें सुलह करनी पड़ेगी। शहनशाह कहता है, जाहिर है तुम नहीं चाहते कि कोई और बुरसा फतह करे, क्योंकि तुम उसे फतह करने में नाकाम रहे बुरहान। लेकिन काफरू के इत्तेहाद को तोड़ने का वाहिद रास्ता लड़कर बुरसा को फतह करने से गुजरता है। इंतजार करना हमें कमजोर जाहिर करेगा और हमारे दुश्मनों को हौसला देगा। औची कहता है, हमारे बुरहान सरदार ने अब तक इनकी काफी हौसला अफजाई की है। बुरहान गुस्से से कहता है, रुक जाएं औची बे, रुक जाएं। जब भी शहनशाह सरदार कुछ कहते हैं आप इनके जुमले ऐसे मुकम्मल करते हैं जैसे वो इन्हें आधा ही छोड़ देते हैं, जरा रुक जाएं। औची गुस्से से कहता है, मैं उस कमानदार का दिफा कर रहा हूँ जो हमें फतूहात तक लेकर जाएगा बुरहान साहब, और आप उस सरदार का दिफा कर रहे हैं जिसने आपको मौत के दाने तक पहुँचा दिया। बुरहान कहता है, मैं काफरू के घोंसले में गया था, मैं खुद गया था। बुरहान साहब ने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया, इसने मुझे काफरू से बचाया, पहले तुम्हें इसका हक अदा करना चाहिए। जरकुतै कहता है, जमलेक में इसने जो किया वो मत भूलें। बहस बढ़ती देखकर अलाउद्दीन कहता है, बस काफी है, आप लोग भी अभी तक बुरहान साहब की बातें कर रहे हैं सरदारान। शहनशाह कहता है, फिर इस बहस को खत्म करें अलाउद्दीन साहब, हुक्म और फरमान आपके पास है, कहें अलाउद्दीन साहब।
उरहान कहता है, बोले अलाउद्दीन साहब, ताकि सब सुन लें और जान लें, क्या आप उस्मान साहब की नुमाइंदगी अक्लो इंसाफ से कर रहे हैं या शाहीन शाह सरदार की गलती को तस्लीम करके। यह सुन के शहनशाह को बहुत गुस्सा आता है और मनून खातून अब भी उनकी बातें सुन रही होती हैं। उधर एक सिपाही तैमूरताज के पास जाकर उसे हकीम वाली पर्ची देता है, जिसे पढ़ने के बाद तैमूरताज को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, उस्मान की हालत बिगड़ गई है, अहमक आदमी, ये मेरा खेल बर्बाद करेगा। फिर कमांडर से कहता है, कल एक काफिला नगोल से काई कबीले की तरफ रवाना होगा, तुम उस काफिले को रोकोगे और सारा गोला बारूद यहाँ लेकर आओगे, तमाम तैयारियां मुकम्मल करो। उस्मान की बेटी फातिमा इस काफिले की क़यादत करेगी। यह सुन के फ्लावियोस कहता है, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं ये जिम्मेदारी खुद संभालना चाहता हूँ। तैमूरताज पूछता है, वजह? तो फ्लावियोस कहता है, कहो तो ये मेरे और उस्मान के दरमियान जाती मामला है। तैमूरताज कहता है, ठीक है। तो कमांडर एतराज करते हुए कहता है, लेकिन जनाब। मगर तैमूरताज उसे रोक देता है और फ्लावियोस से कहता है, तो फिर अपनी महारत दिखाओ, लेकिन तुर्कमान खवातीन को कम मत समझो फ्लावियोस, उनमें से हर एक शिकारी जैसी बेखौफ और ताकतवर है। फ्लावियोस कहता है, फिक्र ना करें, मैं ज़ाती तौर पे उस्मान की बेटी का ख्याल रखूंगा। तैमूरताज कमांडर से कहता है, तुम यहीं रहोगे, मैं बोरसा जाकर शाहनशाह से बात करूंगा। उधर जरगे में अलाउद्दीन कहता है, जब बोरसा फतह हो जाएगा तो हम इस खित्ते की तिजारत पे काबू पा लेंगे, फिर कोई हमारी राह में रुकावट नहीं बन सकेगा। उरहान कहता है, तुम बोरसा के लिए बनाई गई शैतानी इत्तेहाद को कम समझ रहे हो अलाउद्दीन। आप लोग समझते हैं कि काई की बका का मसला सिर्फ हमले से हल हो जाएगा। शहनशाह कहता है, हमारा रास्ता शिकस्त से दूर है उरहान साहब, आप अब लश्कर की कमान नहीं संभाल रहे, तो इसलिए आप काई सिपाहियों को नहीं रोक सकते। फतह अब इतनी करीब है जितनी पहले कभी ना थी। अलाउद्दीन कहता है, बोरसा शहनशाह की कमान में लिया जाएगा, चाहे उसे तबाही क्यों ना करना पड़े। उरहान गुस्से में मेज पे हाथ मारता है और गरजते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, तुम सब एक गलती का दिफा कर रहे हो और खुद को मसाइल में डाल रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। ये कहते साथ ही उरहान आगे बढ़ता है तो अलाउद्दीन कहता है, भाई उस्मान सरदार का हुक्म बोरसा की फतह है, अगर मैं उनका नायब हूँ तो मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा, ये जान लो। उरहान कहता है, तुम्हारा फरीजा हमारी कौम के मुस्तकबिल का तहफ्फुज करना है अलाउद्दीन। शहनशाह चिल्लाते हुए कहता है, कितनी जुर्रत की बात है उरहान साहब, ये अलाउद्दीन साहब का मामला नहीं है, क्या तुम उस्मान साहब के अहकामात की नाफरमानी कर रहे हो? उरहान कहता है, हाँ मैं कर रहा हूँ शाहीन शाह साहब, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, अपने कबीले की भलाई के लिए, मेरे भाई के लिए तो छोड़ो, मैं अपने बाबा के खिलाफ खड़े होने से भी जरा बराबर दुरेग नहीं करूंगा। अब से मेरी नजरें तुम पर होंगी, देखते हैं कौन खुद को दुरुस्त साबित कर पाता है। ये कहते साथ ही उरहान खेमे से निकल जाता है। हम वो कौम हैं जो अल्लाह के हुक्म पर जान भी कुर्बान कर देती है। दुनिया की ताकत हमारे ईमान के आगे कुछ नहीं, न हमें तख्त का लालच है, न ताज की ख्वाहिश, हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जीते हैं।